So hi Ayan, congratulations for ISI and congratulations for IIT Jam also. So rank fourth, huh? It is for you Yes, on in ISI also it is fourth and in IIT Jam also it's fourth. And how much you got in CUET? sir, I got 322 in total, and in part B, I got 253 out of 300. 300, okay. Okay, so please tell about yourself. I mean, you did your college from where, you did your honors from where, and how you prepared for this. So I'll just take it up from there. Hmm. Yes, sir. Sir, I did my undergraduate from Presidency University, Kolkata. Sir, Mhm. I was basically a PCM student with physical education. So I did not have any economics background in class 12th. But when I came into second year, sir, I was very interested to pursue masters in economics. And sir, I contacted Aditya sir and you in February itself, sir, for Hmm. enrolling in the program. Hmm. And you gave me an early introduction by giving the password and key. So I used to go and watch the micro videos Joined even in the before June. MV. Sir, I used to watch them not as any means regularly. Means I used to whenever I used to find time, I used to watch one video, see how you solve it, solve the questions. So Yeah, I used to those get an days. intuitive feel about the subject. But I wasn't regular till the course started in June or July. Okay. So my question was that you started, I mean, you enrolled in June or in February itself? Sir, I paid the fees in February only, sir, but I followed the subject materials, whatever was provided there on the YouTube. portal. Acha. Yes, on the YouTube also and the portal also. Whenever I found time, I means basically I was interested in videos on how to study the subject. Hmm. You had a 26-minute video on how Hmm. to form notes on how Hmm. to study for these subjects. So I used to watch them, all the toppers videos that I used to watch, Hmm. and I used to follow कि ये मेरे लिए क्या मतलब इससे मैं क्या सीख सकता हूँ जैसे वो someone used to say कि मैं past years ऐसे solve करता था कोई someone said that I used to do rough work only on A4 sheet so I got हाँ in exam hall I may not get extra sheets so I should also try this someone told me that some interview I heard that you should prepare for exams like a competitive mode means Hmm. whenever you're sitting for the mock test you should take it seriously Hmm. एकदम जैसे फैन वैन if it's not working then also it is proper इतना so इतना अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है कि फैन बंद करके एग्जाम दें no बट no sir I used to take care that if I'm under a pressure situation कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो कैसे टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं जैसे वो कैसे कूल डाउन आई करे रिमेम्बर I remember, I think after IIT Jam test one or test two, I mean, I don't remember. You यस called सर यू Aditya, and I think I called you up and I told you, भैया अच्छे आ रहे हैं तुम्हारे नंबर because I cannot make anyone overconfident कि मुझे नो पता था सर अच्छे आ रहे हैं टेस्ट के अंदर बट आई कांट से नहीं बहुत बढ़िया आ रहे हैं बिकॉज अदरवाइज पीपल गेट वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि आप तो बहुत ही अच्छा आ रहे हैं मैंने कहा बहुत अच्छा अच्छे आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं डोंट वरी सो आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज गोइंग समवेयर एंड यू कॉल्ड कि Sir, ऐसे ऐसे sir, है I remember before IIT Jam, I had solved the past year's papers about 2 or 3 times. Means I didn't solve every question like from sitting 3 hours. I हम्म, used to I used to take like numerical ability करना है तो 1 घंटा उसके लिए हम्म, MCQ करना है तो 1 घंटा मतलब what I MSQ करना है multiple select questions करना है means I used to break up the question paper to solve. हम्म, And I remember, sir, you giving me a text message that कितने मॉक टेस्ट किए सर आई सेड दैट 2-3 किए होंगे उसके स्कोर ऐसे ऐसे हैं सर यू सेड दैट वो बहुत कम है इन द नेक्स्ट वीक यू ट्राई टू सॉल्व ऑल दैट we have uploaded so I हम्म, focused on solving all the mock tests only in that week in the week before IIT jam and हम्म, I was able to lift my score what हम्म, means in the test it didn't come that well but I thought that it helped a lot to sit under the test scenario and हम्म, then think कि इस pressure situation में क्या करना है sir like Didi ma'am gave us 30 tests before maths test before so ma'am said कि practice करना है ऐसे ही कि assignment की तरह you write down the question sir मेरे लिए था कि नहीं इसको भी थोड़ा seriously लेते हैं so हम्म, whenever the matrix question was there find for value of x
So I used to try and use shortcuts कि बस 20 मिनट्स थे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो कैसे करके कोई शॉर्टकट लगाया जा सकता है सर, वो भी हाँ, बहुत हेल्प किया वो भी क्लास बहुत है। 11 में। लेकिन हम जनरली जब शुरू के टेस्ट के अंदर एटलीस्ट, जैसे जो विधि मैथ्स वाले टेस्ट अपलोड करती है, तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता कि तुमको टाइम डी करना है, ये कर, ऐसे नहीं करता, बिकॉज everyone has different capability and you can't just Yes. push them to wall कि ये ऐसे कर, आराम से धीरे, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज स्टडीज थोड़ा सा ना आराम आराम से करें, वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू मच प्रेशर। एंड व्हेन यू हैव ऑलमोस्ट अ ईयर टू गो तो आराम से कर सकते हैं। सो इट्स इज दैट, बट इट्स गुड दैट इवन यू डिड दोस असाइनमेंट टेस्ट एज टेस्ट्स, व्हिच इज अ गुड थिंग। सर मैंने सर थोड़ा जानबूझ के लेट स्टार्ट किया था सर, विधि मैम ने अच्छा बहुत दिन से हम लोग को पुश किया हुआ था कि असाइनमेंट की तरफ सॉल्व करो। मैं अच्छा। वेट किया कि जब तक थोड़ा कोर्स आगे निकल गया, मैं खुद थोड़ा 11-12 का पढ़ के आया, उसके हाँ, बाद मैंने ये टेक्निक प्रपोज किया। ओ तो दैट्स आल्सो गुड सबके थिंग। सर सर मतलब मैंने एक बार बेसिक रिवाइज कर लिया फिर वो वाले टेस्ट करें। ये सर मैंने लेकिन देखा है सर, सबके मेथड्स अलग अलग हैं, आपको क्या सूट करेगा वो आप पे निर्भर करता है। सबके हम्म। मेथड सर जान लेने में ही अच्छा है कि ये भी किया जा सकता है। जैसे कोई कोई लोग सर टेस्ट जैसे नॉर्मली आप असाइनमेंट की तरह सॉल्व किए, उन्होंने एक क्वेश्चन बैंक बनाया। सर मेरे लिए था कि कैसे क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे किया जा सकता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है, या इस क्वेश्चन को अलग, जैसे सर आप क्वेश्चन माइक्रो के करवाते थे तो मेरा भी यही टेक्निक था कि सर ने ये वाला मेथड बताया, ये मुझे याद रखना है, लेकिन इससे अलग क्या मैं कोई अलग मेथड निकाल सकता हूँ कि नहीं, कि ये मेरे लिए ऑल हेल्पफुल हो जाए एग्जाम में। I may not be that intelligent as you guys are. तो मैं तो नहीं second category, नहीं नहीं, I'm talking, I'm serious. You, Ishan, Shreya, and all, everyone who cleared. But मेरा अपना तरीका, मुझे ये है कि I fall in the second category. That I always want to have my question bank ready. So that, I mean, if I have done several questions ना, उसके बाद मुझे कोई नया क्वेश्चन दोगे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। So that is so the way I think I could learn as a student, वो भी मैंने उसी को उसी तरह से करवाता हूँ कि भैया ऐसे ही मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही इसको इस तरह से ही पढ़े। बट यस, इट्स वेरी गुड। बट मुझे बार बार ये भी लगता है कि हम अपने आप को इतना ज्यादा टीज नहीं कर सकते, इन द सेंस के हम एक ही क्वेश्चन पे 2-2 3-3 दिन तक नहीं बैठ सकते। भैया अगर थोड़ी नहीं देर सर, पढ़ा है, वो ठीक है, तो है। आंसर देखो एंड मूव ऑन। इट विल रिमेन इन द बैक ऑफ योर माइंड, और फिर वो क्लिक कर जाएगा। इट विल सर स्टार्ट वो भी समथिंग। सर हाँ वो भी ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन सर मुझे अलग मेथड 2-3 दिन बाद याद आया कि ये हम्म। तो ऐसे भी किया जा सकता है, जब एक सिमिलर क्वेश्चन मैं कर रहा था। बट तो हर एक हर एक क्वेश्चन पे ना इतना ये भी बहुत अच्छा है, बट आई कैनॉट पुट दिस एज अ जनरल रूल दैट फॉर एवरी क्वेश्चन। यस, हम कोर्स में आगे मूव कर ही नहीं पाएंगे इस तरीके से। नहीं सर वो तो है। that is there. अच्छा, I ask you about the books, I mean, so which books you followed? सर एक्चुअली बुक्स में सर मैं वेरियन फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैं अच्छे से पढ़ लिया था, मतलब जब हम लोग को सेमेस्टर एग्जाम करवा रहे थे तो उस समय मैं उसको रेगुलरली फॉलो किया था, उसका नोट्स वोट्स हाईलाइट करके मैं रेडी था कि बाद में अगर कोई यूजफुल इसका मतलब यूजफुल हुआ बहुत ही। और उसके बाद मैं ब्लैंक कार्ड भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से इन द सेंस कि सर सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैं उसको सीरियसली लेता था कि ये जैसे कोई टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहा है, जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ही हो गया, हैरिस टोडेरो मॉडल ही हो गया, तो मैं सर के साथ क्लास में एक्सचेंज करता था कि सर ये वाला कैसे हुआ, तो सर मुझे अच्छे से बताते थे। तो हम लोग को ऐसा हमेशा लगता है कि कॉलेज में जब मैं जा रहा हूँ तो वो टाइम वेस्ट ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी गुड। कोई कोई भी प्रोफेसर अगर कोई काम का बात बता रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इस सर के साथ मेरा वाइब जम रहा है या केमिस्ट्री अच्छा है, तो आप उनका थ्योरी अच्छे से समझिए, क्योंकि बाद में आपका टाइम जो होगा वो बच जाएगा कि आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया जो बाकी कॉम्पिटिटर्स नहीं पढ़े। जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी हो गया, हम लोग की मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, तो वी यूज्ड टू पे क्लोज अटेंशन टू व्हाटएवर मैम सेड, सो ये ऑल दिस बहुत स्मॉल डिटेल्स मेड अ बिग डिफरेंस। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलेज में जो आपको करवाया जा रहा है, जो प्रोफेसर्स करवा रहे हैं, तो वो भी आप अगर अच्छी तरह से करते हो, दैट सेट अ बेस फॉर दिस एंट्रेंस यस बहुत अच्छी यस तरीके से। मतलब देन यू सर, नो इट हाउ टू अप्लाई अच्छी तरीके से, बिकॉज यस यहाँ पे मेनली न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस और ये सब होता रहता है।
आप अगर कॉलेज से बहुत बहुत अच्छी तरह से करके आए हो, देन इट रियली सेट्स अ वेरी गुड बेस एंड यू शुड ऑलवेज स्टडी। मैं तो भैया अपने हर बच्चे, हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि जो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई जॉब तो है नहीं, तुम्हारी जॉब Yes, पढ़ना ही है, एंड द मार्क्स विच यू आर गेटिंग इज सॉर्ट ऑफ लाइक वेजेस विच यू आर गेटिंग। So why do you want to get yes, low wages? Work hard and get good marks, because अभी nobody has any excuse कि हम नहीं पढ़े। भाई क्यों नहीं पढ़े? कोई रीजन नहीं है हमारे पास नहीं पढ़ने का। एज अ स्टूडेंट वी हैव टू, ये गलतियां मैंने करी हैं, मैं इसलिए नहीं चाहता दैट दीज माय स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक। ठीक से नहीं पढ़े, अरे क्यों नहीं पढ़े? यू टेक द एंटायर फन आउट ऑफ स्टडीज। इसलिए कॉलेज में पढ़ना बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि कॉलेज से ही हम अच्छी तरीके से पढ़े तो हमारा बेस बहुत अच्छा बनता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। yes. अच्छा, सो बुक्स यू फॉलोड जो मेनली कॉलेज के अंदर ही हो रही थी? यस सर, सर कॉलेज वाले बुक्स या फिर जो भी मेन रेफरेंस बुक्स हैं इको ट्रिक्स के भी, जैसे वो गुजराती हो गए, मैं एमसीक्यू को सॉल्व करता था। वो भी गुजराती वगैरह ही करवा रहे होंगे ना? यस सर, वुलरिज गुजराती। So the other thing is that how many revision cycles you did? Because ये कुछ questions है which I have to ask everyone. ये मैं सर इसलिए भी पूछता हूँ बार बार क्योंकि मैं जितना मर्जी कहूँ, जब तक कोई स्टूडेंट ये नहीं कहे ना कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तब तक मेरे जितने मर्जी मैसेजेस चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पर्सन हु इज क्लियर इट, अगर वो कहते हैं भैया रिवीजन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू इट। बिकॉज व्हाट आई नो इज कि लास्ट में ना सबको सब कुछ आ जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आप यस कितना सर, दिमाग में रख पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो तभी आ पाएगा जब आप रिवाइज करोगे बार 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 बार। इट्स अ नेवर एंडिंग गेम। आई डोंट नो, सो हाउ यू डिड, सो हाउ मेनी रिवीजन साइकिल्स यू डिड? हम्म। सर आई कैन से बेसिकली सर मैं टॉपिक्स में सब डिवाइड कर दिया था। जैसे माइक्रो का जो रिवीजन है वो मैं एक बार दिसंबर में ही कर लिया था, और हाइलाइटर पेन से मार्क कर दिया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दिया था। ये भी सर टॉपर्स वीडियो से मैं मतलब सुन लिया था, ये सब टिप्स होते हैं। तो हम्म। कोई एक क्वेश्चन जो हार्ड लगा उसको स्टार मार्क, कोई जो जो बहुत हार्ड लगा उसको डबल स्टार। तो वो सब तो टच करने ही है अगले रिवीजन में। हाँ। और ऐसे करके हाईलाइट करके मैं कंडेंस्ड बना लिया था दिसंबर में। माइक्रो के मैथ्स भी लगभग वही दिसंबर एंड के टाइमलाइन रखा था सबका। हम्म। कि मैं आईआईटी जैम को सर सबसे पहले टारगेट कर रहा था कि आईआईटी जैम एक बार अच्छे से क्लियर हो गया तो उसके बाद अगले वाले के लिए मुझे कॉन्फिडेंस या फिर कुछ मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हम्म। सर वैसे ही करके मैं एटलीस्ट मेरे मेरे हिसाब से, अगर आप इको पॉइंट या कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 रिवीजन साइकिल तो मिनिमम ही है। क्योंकि इन दी एंड जो, जैसे आप एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं या आईएसआई हो जाए या सीयूईटी, वो उसके लिए सबको इनफ टाइम मिल जाता है कि एक हम्म। लेवल के बेसिक प्रिपरेशन सबके दिमाग में आ जाता है। उसके हम्म। बाद जो आपको डिफरेंशिएट करता है कि आप अप टू दिसंबर आई हैड फिनिश्ड 1 रिवीजन साइकिल ऑफ माइक्रो एंड मैथ्स। हम्म। And basically, whenever ma'am started stats, I was again doing the same thing, highlighting and marking the important questions side by side. So basically, at the end of the day, sir, every student, as you said, will know the basics. What हम्म। will differentiate us is how we can approach a problem हाँ, differently. How much formulas we learn properly, and how we can apply them in exam. So absolutely. so I pushed myself to solve more numericals each day, हम्म। एंड द टारगेट वाज दैट कि एट द एंड ऑफ द डे कि मैं एक एग्जाम में जाऊं कोई प्रॉब्लम से डर नहीं जाऊं कि मैं उसे छोड़ ही दूं। हम्म। तो तो ये बहुत अच्छी बात है। और सर हाँ हाँ, मैं सर अपनी एक एस्पिरेंट का एक हमेशा जो वीकनेस रहा है, जो मेरे भी हमेशा रह गया, अभी भी रहा है, कि मैं हम लोग प्रॉब्लम को देख के डर जाते हैं कि ये नहीं हो सकता मेरे से। यार अब तू तो मत कह कि प्रॉब्लम को। नहीं नहीं सर, सर वो शुरुआत में हम लोग के साथ रहता है कि हाँ। मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ या कोई भी पास्ट ईयर सॉल्व कर रहा हूँ, कोई बड़ा सा क्वेश्चन देखा, ये नहीं हो सकता है मेरे से, देखो, छोड़ दो। मॉक टेस्ट का जैसे जो हम भी तुम्हारे को जो टेस्ट दे रहे थे, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे को ओवर कॉन्फिडेंट करना किसी भी हाल में। यस एक तो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं सबके सब, हम उनको बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस दे देंगे तो हो गए तो फिर दे विल नेवर अप्रोच द टेस्ट द वे दे शुड, दे विल यस नेवर अप्रोच द पेपर दे शुड। सो मैं बार बार उनसे कहता था कि टेस्ट के नंबरों पे इतना ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारे जितने मर्जी टेस्ट आ रहे हैं बस अगले टेस्ट में पिछले टेस्ट से ज्यादा अच्छे नंबर आने चाहिए। तुम इस अपवर्ड स्लोपिंग कर्व पे रहो अपने मार्क्स के, तुम धीरे धीरे देखोगे दैट आफ्टर डूइंग सो मेनी टेस्ट वो बढ़ने लगेगा।
But the point is, just giving test is not enough. You also have to analyze it. Okay, what mistakes you यस did सर and how you analyze that test. Because उसके बिना तो फिर हम सिर्फ क्वेश्चन से तो कर रहे हो, वो सीखा क्या उससे, उस टेस्ट से, दैट इज देयर। सर सर इससे विधि मैम का एक वीडियो शॉर्ट वीडियो वो अपलोड की थी पोर्टल पे, मुझे याद आया कि मैम उसमें हम लोग को बता रही थी कि हाउ टू अप्रोच अ टेस्ट, कोई टेस्ट हम लोग देते कैसे। तो सबसे पहले जो मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल है, तो आपको अपने लेवल के जो इजी क्वेश्चन है, जो गलती ही नहीं करना है, वो सबसे पहले छांट लेना है। वो क्वेश्चन नंबर 1 पे भी हो सकता है, वो क्वेश्चन नंबर 50 पे भी हो सकता है। तो हम्म वो सेलेक्टिव आपको 20-30 क्वेश्चन पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कि ये गलती नहीं करना है, ये हम्म गलती किया तो रैंक ऐसे ही गिर जाएगा। उसके बाद मीडियम वाले क्वेश्चंस मार्क करके रिमार्क फॉर रिव्यू जैसे हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद टफ वाले क्वेश्चंस, और ऐसे नहीं है कि मैं टफ वाले क्वेश्चन को ईगो पे, मैम बोलती थी ईगो पे नहीं लेना है। सही। कोई क्वेश्चन हिला, कोई क्वेश्चन हिला तो हिला, नहीं हिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम्म ये सर मुझे सीयूईटी में भी बहुत हेल्प किया कि मैं कोई क्वेश्चन अगर हो रहा था तो मैं उसको अटेम्प्ट कर रहा था, नहीं तो हम्म मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, ऐसे करके करके आगे बढ़ता चला गया, फिर वापस आया। और सर सीयूटी में भी एक ऐसा था कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने सर, मैंने बस 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से भी बस 80 सही हुए थे। हम्म तो उस हिसाब से मैं समझ रहा था कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं है। बेसिकली आपके इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस अगर आपने टच कर दिए तो आपका रैंक ऐसे ही उठ जाएगा। सही बात है। एंड the point is to analyze these tests again is very important. And यस even सर, CUET paper, have you done non-DSE tests which we used to give, बहुत सारे जैसे Go Click यस सर, बेसिकली आई हैव also, because now every kind of level of questions we have to do, easy one also, difficult one also, and medium one also. We can't say हम तो सिर्फ टेस्ट वो मुश्किल वाले ही करेंगे, हम इजी वाले नहीं करेंगे। हमारे को कुछ नहीं पता भैया किस पेपर में क्या आ जाए, वी डोंट नो। यस सर तो माय सर। पॉइंट, एंड मुझे एक चीज और लगती है, our sharpness of mind will come through those D school ISI JNU previous years papers. Those is that यस is सर, are extremely important and they have to be done. But आप ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज मैं 2004 का पेपर करूं फिर मैं 2005 का पेपर करूं। दिस इज नॉट द वे टू लर्न। जब आप टॉपिक कर रहे हो उसके साथ साथ क्वेश्चंस करते चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू कि मैं पूरा पेपर ऐसे कर लूं फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व हुए कोई नहीं हुए। दिस इज नॉट द वे। पहले पूरा कोर्स अच्छी तरह से रजिस्टर्स बनाओ, उसके बाद उन 10 years को फिर से उठाओ एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। बट यस सर, within everything should be solved. That should be the way. This is what I thought. I mean, people can differ in whichever way, but मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका better है to go about it. And doing previous years is very important. I hope that's true कि भैया previous यस years सर। के खिलाफ नहीं जा सकते, आईएसआई में भी, डी स्कूल में भी और उसमें भी। कोई भी टेस्ट हो सर, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, और सर अलग अलग टॉपिक्स को सॉल्व करना। जैसे मैंने बोला, मैं एमसीक्यू को एक बार सॉल्व किया, एक मल्टीपल सेलेक्ट को सॉल्व किया, न्यूमेरिकल एबिलिटी को अलग से सॉल्व किया। उस हिसाब से मैं स्कोर देख रहा था कि इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। तो सर ऐसे अलग अलग करके स्प्लिट अप भी कर सकते हैं, अगर कोई 3 घंटा नहीं बैठना चाहता है। हम्म 15-15 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन। अरे यू तुमने जैसे डी स्कूल टाइप टेस्ट वगैरह पूरे 3 घंटे बैठ के नहीं दिए? नहीं सर, वो तो मॉक टेस्ट मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, मैं अच्छा प्रीवियस ईयर के बोल रहा हूँ, अच्छा, जो जो आपका पीडीएफ फॉर्म में है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर्स यू डिड। सारा पूरा पेपर अलग एक साथ बैठ के करने की जरूरत नहीं है, 10-15 क्वेश्चन एक साथ कर लो। हाँ हाँ सर, मैं वो स्टाइल से भी आप कर सकते हैं, अगर आपका बैठने का तो आदत पहले बनाना चाहिए। बनाना ही पड़ता। जिसका आदत नहीं है, वो स्टार्टिंग में ये मेथड भी यूज कर सकता है कि मैं 10 क्वेश्चन ही बैठा, तो उसको भी मैं पूरा रिगरसली सॉल्व करने का कोशिश किया। नहीं हुआ तो ठीक है, मार्क किया, फिर अगला 10 क्वेश्चन, अगला 10 क्वेश्चन, ऐसे करके फिर पेपर के एंड में मैं देखा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और जिसकी आदत नहीं है उसके लिए सबसे अच्छी एडवाइस मुझे लगता है कि 2 घंटे अपने फोन को अलग रख के, कि मैं 2 घंटे के लिए फोन नहीं देखूंगा, एंड कुछ यस भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, कोई ऐसी आपदा नहीं आ जाएगी कि तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि अगर मैंने फोन नहीं देखा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर सही में किसी को बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे से बात करनी होगी तो वो कोई ना कोई तरीके से तुम्हारे से बात कर ही लेगा, तुम्हारे दोस्त को फोन कर देगा, किसी को कर देगा। लेकिन
हम सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस फेसबुक और व्हाट इज इंस्टाग्राम। एंड ये इंस्टाग्राम तो भैया मैंने अपने फोन पे नहीं डाला, बट आई एम टेलिंग यू इवन समटाइम्स आई ऑल्सो वेस्ट। मेरे को कई बार ऐसा लगता है जैसे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूँ और 20-25 मिनट कहाँ चले गए पता नहीं चला, अननेसेसरी के यूट्यूब शॉर्ट्स हैं। तो वो इंस्टाग्राम तो भरा ही पड़ा है इन सब चीजों से, कोई एंड ही नहीं है। सो इससे दूर रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यस अनलेस वी क्रिएट सम काइंड ऑफ स्पेस फॉर अस एंड टाइम फॉर अस कि भैया अब पढ़ लेते हैं, तो ही हम पढ़ सकते हैं। और एक और चीज है, आई एम टेलिंग दिस इन द इंटरव्यू इटसेल्फ, ये भैया जो ये ऐसे जो फोन लगा के वो जो गाने सुनते हुए पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे तू पढ़ता है ऐसे गाने सुनते हुए? नहीं सर। मैं कभी नहीं पढ़ सकता। आई कैन नॉट मेक एनी नोट्स वाइल लिसनिंग टू सॉन्ग्स। एक आपकी कभी भी नहीं बनेगी सीरियसनेस। तो वो आदतें अच्छी नहीं है। बट हम लोग सिर्फ एडवाइस ही कर सकते हैं, लाइफ ही सिखाती है। सो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। सो इट्स बेटर कि भैया फोन से थोड़ा सा दूर रहना, धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर टू अचीव एनीथिंग। आई थिंक दैट इज आवर वर्स्ट एनिमी ऑल्सो। हम सर सब। एक और चीज है सर। सर वी equate academic performance separately. It should हम्म। be taken as a overall way of living a life, because everything is affecting how I am studying. Suppose I am not in a good mood, suppose I am not mentally or physically well, so that will affect our performance. सर तो मैं तो सर ज्यादा से ज्यादा यही सब चीजें पढ़ता था कि कैसे मेंटली शार्प रह सके, कैसे फिजिकली हम लोग अपने आप को वो वो प्राइम कंडीशन में ले जा सके। क्योंकि सर मैं ऐसे बहुत एग्जांपल्स जानता हूँ जिनको तबीयत खराब होगी एग्जाम के पहले, दे हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन और दे कुडंट कोप अप विद द प्रेशर। हम्म। तो उसको भी हम लोग को डील करना है कि ये जो मेंटल आपका आपके ऊपर प्रेशर है कि अच्छा जगह जाना है। सबको लाइफ में एक ना एक अच्छा चीज सर चाहिए ही चाहिए। तो और ये आपको अगर चाहिए तो इसके लिए आपको जो सैक्रिफाइसेस करनी होंगी, या फिर आपका जो मेंटली आपको स्ट्रांग होना होगा, तो वो सर हर हर दिन आप जो जो काम कर रहे हैं वो उससे भी अफेक्टेड होता है कि आप आपका जो स्टडी का परफॉर्मेंस है। तो बेसिकली मैं उसके नोट्स बनाता था कि सर हाउ टू बी फिजिकली वेल। सर आप भी हम लोग एक ग्रुप में लिखते थे कि ये मोबाइल नहीं चलाना है, हम्म। आपके जो भी कोट्स मुझे अच्छे लगते थे मैं उसे भी डायरी में लिखता था। हाँ आई मीन सर आई आप क्लास में सर आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो उसमें बोलते थे कि प्रैक्टिस इज द की। तो मैं वो सब भी लिखते रहता था कि विधि मैम ने कहा है कि हम लोग को रिवीजन करना है, तो वो भी कॉपी के हेडिंग में मैं लिख देता। और जैसे अयान ने कहा, मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा। उसने कहा कि मेरी पढ़ाई की परफॉर्मेंस विल अफेक्ट माय मेंटल हेल्थ आल्सो, राइट? सो दैट इज आल्सो ट्रू। एवरीथिंग वाइस वर्सा आल्सो। यस। एंड द पॉइंट इज, अब मेरे को ऐसा कई बार लगता है जैसे मेरे साथ भी, अगर इनके सिर्फ आई एम टेंस्ड, तो काम तो बंद नहीं हो सकता। आपको काम करना पड़ेगा। तुम लोगों के लिए पढ़ाई बंद नहीं हो सकती, करनी पड़ेगी। चाहे जो मर्जी है, इट डजेंट मैटर। वर्क को तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है, तो हम ये क्यों ना कर सकें? मैं कई बार, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं चुपचाप से बैठ के नोट्स बनाता रहता हूँ। एंड वेन यू राइट 2-3 पेजेस ना, वो मेंटल, वो जो आपको कामनेस आपकी यस हटा रही थी, वो हट जा, वो कामनेस आने लगेगी। वो धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड धीरे, मैं क्यों नोट्स पे बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर हमारे पास और कोई काम नहीं है इसके अलावा। वी हैव टू मेक नोट्स, और इसी से हमारी कामनेस भी आ जाएगी। करके तो देखना चाहिए कि कभी बहुत ज्यादा कुछ परेशान भी ना होंगे, परेशान अपने घर में, ठीक है, कॉपी सर उठाओ। सर मैं भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बीच बीच में मेरे सर जैसे मेरा ब्रेक डाउन हो गया था क्लास में, आप अटेंड नहीं कर पा रहा था लगभग जुलाई का एक वीक और दिसंबर का एक वीक। तो उसमें मेरे बहुत सारे वीडियोस बैकलॉग हो गए, तो उस समय लग रहा था कि क्या हो गया, मैं प्रिपरेशन से पूरा कट ऑफ हो गया। तो उस हिसाब से भी आपका जो स्ट्रेटेजी था कि एक वीडियो एट अ टाइम, एक एक लेक्चर कंप्लीट किया, उस हिसाब से मेरे को परफॉर्मेंस में मैं देखा कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अभी भी आई एम नॉट ओवर येट। तो थोड़े थोड़े करके मैं हर रोज एक एक वीडियो कंप्लीट किया, बैकलॉग कंप्लीट किया, फिर मैं रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अगर कोई किसी का परफॉर्मेंस खराब होता है, वो गिव अप करना चाहता है, तो गिविंग अप तो कभी ऑप्शन नहीं होना चाहिए किसी के लाइफ में। तो आप रिटर्न कीजिए,
एक लेक्चर एट अ टाइम, एक पास्ट ईयर एट अ टाइम से आप स्टार्ट कीजिए। आप देखिएगा आपका मन बहुत अच्छा लगेगा, आपका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मेन चीज है गेम का सर कॉन्फिडेंस का। जो एग्जाम में कॉन्फिडेंटली गया उसका परफॉर्मेंस दूसरे से 10% 5% बेहतर। और जितना माइंड काम होगा ना, हम उतना ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। उस किसी भी कंपटीशन के अंदर अगर हम एंशियस होंगे, हम अच्छी तरह नहीं परफॉर्म कर सकते। हमारी आधा कंपटीशन तो वहीं खत्म हो जाता है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा एंशियस रहेंगे। सो यस सर। माई थिंग टू एवरीवन इज, कभी भी जैसे बहुत बड़ा कोई चीज लगती है कि ये बहुत बड़ी चीज है, तुम स्टार्ट करो बस। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू टुडे, जस्ट टुडे। यस डोंट सर। थिंक अबाउट के हर रोज। बस तुम ये सोचो कि तुमको ये काम हर रोज करना है, दैट्स इट, खत्म। जस्ट कीप ऑन डूइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। बट दैट्स ट्रू, ये है। इसमें कोई कोई समझने के लिए बहुत आसान समझ है, और इसको कॉम्प्लिकेट करना है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता है हर कोई भी। बट द पॉइंट इज भैया, एज अ स्टूडेंट, आर नोट्स इज आर वेल्थ एंड आर नॉलेज इज आर वेल्थ। तो भैया वो बनाने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं चलेगा। ये पक्की बात है। और मैं एक चीज सर और मुझे ये भी हाँ हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था एक एस्पिरेंट को अगर कोई भी स्टेज में डिफिकल्टी आती है तो उसको कनेक्ट करना होगा दूसरे लोगों से। हम्म कि सर से जैसे मैं इंटरव्यू के पहले सर आप और मैम बहुत अच्छे से एक कॉल मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज की सर, हम्म मैंने दिया, मैम ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि टेंशन नहीं लेने का, जो हो गया पीबी में अच्छा अच्छा ही तुमने किया है। लेकिन मैम को बोलते रहेगा कि मैम नहीं हुआ, मैं और अच्छा कर सकता था, लेकिन मैम बोली कि तुम्हारा टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, तुम अच्छा जरूरी करोगे ही। तो सर ये जो छोटे से जो आपको मोटिवेशन देते हैं या कोई आपको अच्छा बोल जाता है तो वो भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है। नहीं, ये तो हमारे को पता ही है। तुम्हारा किसी भी इंटरव्यू में नाम आया है, तुमने अच्छा करा ही होगा, तुम्हारे में कोई अच्छे गुण होंगे तभी तुम आए हो यहाँ तक। अदरवाइज क्यों बुलाएगा आईएसआई या आईजीआईडीआर या आईएफटी या कोई भी इंस्टीट्यूट। तो अपने ऊपर उस समय कोई किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं रखना। कहो आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट वेल, एंड यू विल सर्टनली सी कि हाँ हो जाएगा अच्छा। So that is good thing. And so last question which I ask is अब इसके बाद क्या PhD और job, which we सर ask everyone. सर आई एम मोर इंटरेस्टेड इन रिसर्च वर्क और पीएचडी। Very सर good. मैं यहाँ पे भी आया इंटर्नशिप और कॉर्पोरेट मतलब प्लेसमेंट के बारे में सुन रहा हूँ सर, उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना मैं सोच रहा था कि नहीं कुछ कुछ नया हम लोग जैसे रिसर्च वर्क करते हैं। या फिर मैं जब इकोनॉमिक्स को स्टार्टिंग से पढ़ रहा था तो बेसिकली इंटरेस्ट यही था कि कुछ नया पढ़ना है। जैसे मैं एक सर अलग अलग बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बुक हैं सर, मैं रिचर्ड थैलर को फॉलो कर रहा था, उनका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का बुक जब मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अलग अलग थ्योरीज हैं इन वर्ल्ड में जो हम लोग नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में नहीं अच्छे से पढ़ते हैं। हम्म, तो यही सर मेरा भी सजेशन ये है कि फ्लेक्सिबल रहना चाहिए सर, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग लाइफ में, लेकिन हाँ अगर आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में तो आपको फॉलो अप करना चाहिए। करना चाहिए, which is good। मतलब because मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ, this is something we couldn't do, so we wanted our students to actually get into। हमारे प्रोफेसर्स कहते हैं ना, हम कभी सीरियसली लेते नहीं थे। वो हमेशा कहते थे कि पीएचडी अपने दिमाग में रखना। हमको लगता था ठीक है कह रहे होंगे, बट व्हेन आई केम ऑन द अदर साइड देन आई रियलाइज्ड यस दैट्स इंपॉर्टेंट। अब इस एज में नहीं कर सकता मैं, लेकिन आई फील गुड कि हाँ भैया चलो अब अच्छा है। और लोग तो करें ही करें डेफिनेटली, बिकॉज स्पेशलाइजेशन का जमाना है एंड पीपल शुड गेट दिस पीएचडी थिंग डन। एक बार लेके खत्म करो। एनीवेज, बट दैट्स योर थिंग कि भाई क्या है। सो यू आर इन आईएसआई राइट नाउ और कहीं और से दे रहा है? सर आई एम इन ऐसा ही हॉस्टल में। अभी उधर से दे, ओके। Good enough. So, thank you very much, Ayan, and all the best. थैंक यू सर And कॉलिंग। congratulations again for such good scores and good marks and good ranks everywhere. Do very well in life. Sure. Thank you, beta. थैंक यू सर।